चलिए. So in last class we are discussing that is the fundamental of mathematics. और कुछ पोर्शन इसमें बीच में रह गया था आपने. तो उसको अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर दैट इज इम्पोर्टेंट है इन करंट सिनेरियो. इसमें से अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल. और सिंपल मीन्स कि इन एडवांस एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉट आस्क. मीनिंग इज दैट कि conceptual questions are more asked. Your concepts are clear, you can easily solve any kind of question. Like this is one question. So we try to solve all kind of conceptual type question. Calculation type questions are different. This is the a questions modulus function related question. When you see this question, so in this question there is a properties applied. What kind of property? Let's see. In modulus function we need to write down some properties. One property, that is the mod x. You know, mod of x plus mod of y is equal to mod of x plus y. Sorry. Wait. Just wait, student, no? Please. Actually, some network issues come, so we will start within 1 minute.
Okay, so let's do start. Modulus related inequalities questions. Yeah? Hmm. So we are discussing that is in this question. There is some properties of modulus is applicable. And what kind of properties? You know, that is the mod of x plus mod of y. This is equal to mod of x plus y. And this is always valid if x into y is greater than equal to 0. Greater than equal to 0. That means same sign. Similarly, one property है mod of x minus mod of y whole mod. This is equal to mod of x plus y. Or this is valid if x into y is less than equal to 0. Mod of x minus mod of y is equal to mod of x plus y if x into y is less than equal to 0. क्या हो रहा है? Today some technical problem is coming.
This is also deleted. So mod x plus mod y equal to mod x plus y if x y greater than equal to 0, and mod x minus mod y, its whole mod, is equal to mod of x minus y if x into y is less than equal to 0. Less than equal to 0. So in this question, sorry, this is a what happened today. There is so technical problem is coming. Alternative source I need to. Once you will wait.
चलिए एक बार बता दीजिए, साउंड और स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? यस यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी, भी शायद रिमूव हो चुकी है। वी विल स्टार्ट कंटिन्यू। क्वेश्चन, okay, so we had solved this question. क्वेश्चन आ रहा है क्या? ये शेयर हो रही है क्या? Are you visible question? Sum of all possible integral solution of equation. नो सर, नो सर। वो टॉपिक्स टू डिस्कस आ रहा है। Question not visible still. अच्छा,
सर अभी विजिबल आई थिंक. This question is visible. Yes, sir. Okay, guys. So in this question, we need to use one property. So, yeah. So, mod x minus mod y whole mod. This is equal to mod of x plus y if x into y is less than equal to 0. We need to use this property only, and you can solve this question easily. Yes. So when you see this question, so this is completely act as a x, and this completely act as a y. And so it will become mod x minus mod y equal to x plus y. Guys, if you add both of these, when you add this x square minus 6x plus 5, or this term we will add with 2x square minus 3x plus 1. So we are getting same thing like this way, 3x square minus 6 minus 9x plus 6. When you take 3 common, it will become x square minus 3x plus 2. This is also same thing. That means mod x minus mod y equal to mod of x plus y. So this property is valid if x into y is less than equal to 0. In this case, we can apply here. So x into y to x square minus 6x plus 5 into 2x square minus 3x plus 1. This should be less than equal to 0. Here opposite sign, so that's why this is less than equal to. Now, when we factorize both of these, so minus 5 or 6, so this will become factorized at x minus 5 or so it will be factorized as a x minus 5 into x minus 1. It is also factorized like this way, 2x minus 1 into x minus 1. This should be less than equal to 0. Yes or no? Now, when all are the factorized, now when you arrange on the number line, so we are getting smallest number is 2x minus 1 equal to 0, x equal to 1 by 2. When x minus 1 equal to 0, x equal to 1. And when x minus 5 equal to 0, x equal to plus 5 only. When we arrange the sign, these are the basic concept. When you arrange the sign, the first sign is positive, negative, positive, or negative.
we need to select less than or equal to 0. So less than or equal to 0, that means all numerators, all are included. In this case, but question, what is asked? Question is asked sum of all possible integral solution. Sum of all possible integral solution. Mod of x minus mod y equal to mod of x plus y less than equal to 0, negative. All possible integral solution. Less than equal to 0. क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो रही है. एक्स माइन, अच्छा सॉरी वन मिस्टेक अपन ने कर दी. देखिए क्वेश्चन, देयर इज एक्स माइनस 1, दिस इज 2 टाइम्स. एक्स माइनस 1 इज 2 टाइम्स है यहाँ पे. एक्स माइनस 1 दिस इज 2 टाइम्स. तो if this is 2 times, so there is sign not change. After 1, this sign is not change. So minus only. And this is the 1 by 2, so after that it will become plus sign only, right? So now less than or equal to 0, so this is the 1 by 2 to 5. This is our complete interval. But question is asked, what is the sum of all possible integral solution? So here, if you write down integers only, what are the integer solution? Integer solution, we need to write down x equal to like 1 by 2 to 5. In this interval, 1 by 2 means 0.5. After that, integers are 1 possible hai, 2 possible hai, 3 possible hai, 4 possible hai, or 5 possible. These are the integer solution. Now question is asked, what is the sum of these integers? So sum you can easily find out, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. And when you say this sum is equal to 15 only. So that means my concept is that from this modulus, sometimes this kind of conceptual question can be asked. So here we apply this property. Similar kind of other question also asked can be. जैसे कि ये भी हो सकता है जैसे mod x plus mod y. This is equal to mod of x minus y type. One is this also a property. And in this case is also we need to apply if x, y is less than equal to 0. Similarly, if mod x minus mod y, or this is equal to mod of x minus y only. So this is again valid if x in y is greater than equal to 0. And okay, that kind of question you need to apply here basic concept, this property only, not completely you need to solve. You can easily find out the answer. Now this question solution I already mentioned, you will see. अभी देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है लॉगरिथम का. तो लॉगरिथम से एडवांस में इन एडवांस many kind of questions asked from the logarithm topic. Properties of logarithm है, properties of logarithm, तो all of you know very well. तो सबसे पहले तो logarithm, what is the meaning of this? Y equal to log of x to the base a. Small things अपन discuss करते हैं. This is the logarithm function. In this case, one जो important thing है वो ये है कि ये जो x है, this x is always greater than 0. That is called as number. This is called as base. Similarly, a is also always greater than 0 and a not equal to 0. ये आपको ध्यान में रखना. लॉगरिथम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ ना. इफ log of b to the base a, this is equal to c, then we need to write down b equal to a power c. The symbol is represent then, if this, then this. One property, log of m to the base a plus log of n to the base a. This is equal to log of m into n to the base a. Both are multiple. Similarly, one property है log of m to the base a minus log of n to the base, or this is equal to log of m by n to the base a. Next, one property we need to discuss, a to the power log of b to the base a. That means if this base and this base both are same, so this is equal to b.
one property that is a to the power log of, देखना ध्यान से, b to the base c. This is always equal to this a and b can be interchanged. A and b can be interchanged. b to the power log of a to the base c. Got it? Similarly, one property log of b to the base a. You can change its base. That is log of b to the base c upon log of a to the base c. One is reciprocal type property here, that is log of b to the base a. This can be written as 1 upon log of a to the base b. Got it? Like this is a some properties here mentioned already. So now what kind of questions can be formed? Like this is the one question from the logarithm and 4 options are given. Multiple option questions answer can be formed from the logarithm in the JEE exam. Property based question is simply we can say. So when you simplify this question to the capital N equal to log of, this is the 135 to the base 15 and this is the 405. If you can convert this base are similar kind, then we can easily solve. Like this way. This is the 135, this is the 405. So log 135 can be written as log of 50 into 9 to the base 3 already hai. Or this can be written as log of, we will write down same properties. Base is same only. Na? There is the 1 upon log of 3 to the base 15. Reciprocal property we need to apply, and this can be written as log of 15 to the base 8. What it base is same. Similar kind here also. Log of 5 to the base 3 to already hai. Or this is the 1 upon log of 3 to the base this. So this can be written as log of base exchange 405 to the base 3 only. When you see, this can be written as log of 15 to the base 3 m into n. Here m into n property we apply into plus log of 9 to the base 3. Into this is again log of 15 to the base 3 minus. There is the log of 5 to the base 3 hai, into. This can also written as multiple of 15, or you can write down multiple of so this is the 5 hai. So here also we can write down in terms of 5 only. So if you write down this when you divide it by 5, so this will become 8 or 181. No? So 81 into 5. So this can be written as log of 81 to the base 3 or plus log of 5 to the base 3. Got it? Like this 15 also we can write down log of 5 into 3. That means 5 to the base 3 plus log of 3 to the base 3. This log of 9 to the base 3, this can be written as log of 3 square to the base 3. And log of 15 to the base 3 hai. This can be again we need to write down log of 5 to the base 3 plus log of 3 to the base 3 minus. Here this will become log of 5 to the base 3. This 81 can be written as log of 3 to the power 4 to the base 3. This minus, again minus, this is the log of 5 to the base 3 whole square. When you simplify this, definitely something is cancelled out. So, dekhna jara. This is the log of 5 to the base 3. This is also log 5 to the base 3. Both are multiplied, so this will become log of 5 to the base 3. You know this is log of 3 to the base 3, so this is 1 only. Or this is also log 3 square है. चाहिए स्क्वायर तुमने पहले कर लिया, बस एक स्टेप और ले लेते हैं. So this is the 1, or this will become 2. Or this is also
log of 5 to the base 3 or plus 1. Or minus from this also you can see this is the 4. This is the log of 5 to the base 3 into 4. Or minus log of 5 to the base 3 whole square. 1 plus 2, this is 3. When you multiply both of these. So now we will multiply. The log of 5 to the base 3 whole square plus this is 1 plus 2, 3. 3 into log of 5 to the base 3. Plus 1 into this, the log of 5 to the base 3. 1 plus 2, 3. 3 1 ja 3. Or minus this is the 4 into log of 5 to the base 3 or minus this is the log of 5 to the base 3 whole square. Yes or no? When you see this, so all things are cancelled out of logarithm terms. This term is cancelled from this. And this log 3 times log 5 base 3 plus 1 time. This is total 4 times. 3 plus 1, 4. Or this is also 4 times. So this is also cancelled. Only we have answer is 3. Its answer is 3 only. Property based question. So in this case, you can see 3 is the natural number, also prime number, also rational number, and also an integer. So like this way, you can easily solve. Similarly, this is also property based question. I hope you solved already. और इसका मैंने आपको solution दे दिया था. If anyone have doubt, any question, yeah, then you can ask, na, sir, this question you explain. I slides only. Next chapter also we need to deal. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन थोड़ा सा. यहाँ पर क्वेश्चन ये भी सिंपल ही एडवांस का क्वेश्चन है. ये जो सीरीज है, दिस इज द इनफाइनाइट टर्म सीरीज इन दिस टर्म्स आर रिपीटेड, है ना. दिस काइंड ऑफ सीरीज हाउ टू वी विल सॉल्व. तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको आप मान लीजिए x. Let us consider x equal to this series only. 3 root 2 into square root of 4 minus 1 by 2 into square root of 4 minus 1 by 3 root 2 into square root of 4 minus 1 by 3 root 2. Like this, so this is run up to infinite. Hai na? Whenever you solve this kind of question, you need to assume like this. Now, what you need to do after that, at which it is repeat. Repeat concept. X equal to 1 by 3 root 2 square root. And you can see this is after this. This is again 1 by 3 root 2 square root of 4 minus. From this 1 by 3 root 2 square root of 4 minus. From this also 1 by 3 root 2 square root of 4 minus. Concept is that you will write down again it is x only. Yes. X equal to this will become 1 by 3 root 2. Into this will become square root of 4 minus. After this, you can again repeat. So this is again write down x. Up to infinite. From infinite, only one term you can left. Because infinite term sum hai. Or sum of infinite term there is not much more significant. So you can assume again as x. Now you will solve and find out the x value. This is the 3 root 2 into x equal to square root of 4 minus. So both side squaring kar lijiye. When you will do both side all squaring. So this will 3 root 2 square, that is the 18x square. This is equal to 4 minus x. When we simplify, this will become 18x square plus x minus 4 equal to 0. So this is the quadratic equation. You can factorize easily. And when you factorize, this is the, 9 minus 1. So this will become 18x square plus 9x minus 8x minus 4 equal to 0. You will take common, this will become 9x into 2x plus 1 or minus 4 common, so this is also 2x plus 1. So this will become 9x minus 4 into 2x plus 1 equal to 0. So from this x equal to 4 by 9 possible hai, or x equal to minus 1 by 2 possible hai, but x equal to minus 1 by 2 not possible. Because 1 by 3 root 2 square root something hai. The square root something, whatever the value, its value is always positive. It is always greater than 0. Negative value not possible. So negative value not possible, so it is rejected.
only x equal to 4 by 9. That means this complete value is 4 by 9 only. Now you can easily simplify this. Yes. So now this question will become simply like this way. This is the 6 plus log of 3 by 2 to the base, and this complete square root value, this complete value you can represent by x, and x equal to 4 by 9. This will become 4 by 9 only. 4 by 9 is the 2 square upon 3 square. So you can write down this is the log of 6 plus log of 3 by 2, or this can be written as 3 by 2 power minus 2. Power minus 2. This power minus 2 you can shift in multiply. So this will become 6 minus 2 log of 3 by 2 to the base 3 by 2. This is the one only. Answer will become 6 minus 2 equal to 4. So like this you need to solve. Here important is this series only. After that logarithm property you can easily solve. Got it? A similar kind of this is also a question. I hope you solved it here also. This is also advanced question है, advanced माया वाला question है. तो इसको कैसे करेंगे? This is the a equal to 3 root 2 है. So when you simplify this first equation will become 3x plus 2y. This is equal to log of 3 root 2. A equal to 3 root 2 हो जाएगा ना, 18 to the power 5 by. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लॉगरिथम की मैं आपको यही लिख देता हूँ. ये जो log of a to the power m to the base b है, तो जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि m आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, m into log of a to the base. One more kind of property होती है, एक b power m to the base a हो, यानी बेस की पावर में m है, base to the power m. This m we need to write down in divide 1 upon m into log of a to the base. These two properties. तो मीनिंग क्या हुआ, ये जो 3 root 2 है या फिर 18 है, ये 3 root 2 बेस है इसका. 18 also can be written as 3 root 2 square. 3 root 2 whole square. 3 root 2 whole square is always 18. I hope you know. So when you simplify, this will become 5 by 2. So this 5 by 2 you can shift in multiply 5 by 2 into log of 3 root 2 to the base 3 root 2. Now base and number are same, so its value is 1 only. Its value is 5 by 2. The first equation will become, we can write down 3x plus 2y. This is nothing, that is 5 by 2. This is you can give as question number. After that, this is 9th, 10th class question. Similarly, if you solve this 2x minus y. 2x minus y, this is equal to log of b. b equal to this one only. अब ये जो वैल्यू है पाई 1 अपॉन पाई टू द पावर 1 by 6. तो एक काम करते हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई सेपरेटली दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1080 को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा. ये जो 1080 है, दिस कैन बी रिटन एज 1080 पावर 1 by 2 ना, स्क्वायर रूट है ये, all power 1 by 2, right? Now this can be written as 1008 to 36 into 3 into 10 है ये, right here. You need to write down in this term only, 5 power 1 by 6 or root 6 type. That means 5 into 6 type you need to write down this. You can see this is 6 into 6. It's all power 1 by 2. 6 into 6. Or this is 3 into 3 into 10 can be written as 5 into 2. 5 into 2 is also 6. All power. Meaning is that this can be written as 5 into 5 power 1 by 2 into 6 power 3 by 2. This complete term you can write down like this.
ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1080 है, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस 5 पावर 1/2, दिस इज द 6 क्यूब हो गया, 6 क्यूब पावर 1/2, तो 6 पावर क्या हो जाएगा नंबर 3/2 वी कैन राइट डाउन। तो अभी अपन इसमें बात करते हैं। तो b इक्वल टू दिस इज द पावर इज 1/6 एंड दिस इज द रूट 6 ओनली, बेस इज रूट 6। अच्छा, कैन यू राइट डाउन लाइक दिस वे? देखो जरा, तो दिस कैन ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस वे। ये जो 1/2 है, दिस 1/2 कैन बी रिटन एज 1/6 होल क्यूब, or this can be written as 6 power 1/2 whole cube. The meaning is that this complete can be written as 5 power 1/6 into 6 power 1/2. Its complete has whole cube. मेरे पास समझ पा रहे? तो ये चीजें हैं। अब दिस इज द 1 है, तो you need to write down 1 can be written as 5 power 1/6 और 6 power 1/2, रूट 6 1/2 है, पावर -1। और ये जो रूट 1080 है, इसको मैंने अभी सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके मैं इसको ये लिखूंगा, तो 5 पावर 1/6 ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी, और इसको मैं ये लिख दूंगा 5 पावर 1/6 इंटू 6 पावर 1/2 इट्स होल क्यूब। मीनिंग इज दैट, तो यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू दिस विल बिकम दिस पावर -1 you need to write down in the divide. After that you can see base and power are same. So full and final when you simplify this will become 3 upon -1. This 3 is multiply. ये complete base है, प्रॉपर्टी अपन ये लगा रहे हैं, a power m, this complete is the number, this complete is the base. Base and number both are same, 5 power 1/6, 6 power 1/2, whole cube है, ये power -1 है, तो 3 power -1, remaining value will become 1. तो कुल मिला के ये 2x minus y equal to -3. This is give equation number 2. Now we have two equation to unknown. You can easily simplify this. One equation ये होगी और one equation ये. Now it will become ninth class question, linear variable type, 2x minus y equal to -3 and 3x plus 2y. So advanced में आएगा क्वेश्चन है, just logarithm property based है. After that you will simplify, you will get the answer. Okay क्या? तो इन एडवांस में लॉगरिथम नंबर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू इसके की इक्वेशन टाइप फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिक्स. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इज आस्क्ड सिंपली वी कैन से. तो ये अपन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में इतना ही करेंगे अपन. बाकी अगर आपके डाउट हो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैसेज करना मुझे, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा. अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर लेना, आई विल एक्सप्लेन इट. नाउ नेक्स्ट अपन स्टैटिस्टिक्स वाला स्टार्ट करना चाहेंगे, देखते हैं जरा. स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है. एक्चुअली अगर अपन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है इन द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अगर एडवांस में बात करें तो अभी तक पिछले 5-7 ईयर्स के अंदर, 5-6 ईयर्स के अंदर 2 टाइम्स क्वेश्चन एडवांस में आए हुए हैं. और ये क्वेश्चन भी एक 2023 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2025 में आया. और ये क्वेश्चन मैंने देखे थे, बड़े बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं एडवांस के अंदर.
एज कम्पेयर टू मेंस में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इसके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो और ये क्वेश्चन भी 2023-25 में आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि करंट सिनेरियो के अंदर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मे बी दिस ईयर सम डिफिकल्ट। 2023 का क्वेश्चन सिंपल था, अभी अपन सॉल्व करेंगे, और 2025 का क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट था। तो ये चांसेज है कि इस बार और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इसके आप मेंस के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना स्टैटिस्टिक्स से, तो आपका एडवांस का एक क्वेश्चन ये पक्का है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन, बिकॉज वेरी सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको नहीं लगा, जस्ट ओनली 4-5 फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। तो उसी से रिगार्डिंग अपन बात करते हैं, एक मिनट। पूरा चैप्टर ये सिंपल रहेगा। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले तो अपन क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैप्टर का, फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए। इसमें अपन मेजरली स्टैटिस्टिक्स में दो ही टॉपिक होते हैं, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन पूछते हैं, और एक डिस्पर्जन टाइप के टॉपिक होते हैं। दो टॉपिक इसमें अपन लेते हैं, एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, एक होता है डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग हुआ, डार्क ब्लू। सेंट्रल टेंडेंसी में अपन मेजरली दो ही चीजें तीन चीजें पढ़ते हैं, मीन और मीडियन, मीन है, मीडियन है और मोड है। So these three topics we need to cover in the central tendency। और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में अपने पास में टोटल तीन टॉपिक होते हैं, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है, थ्री टॉपिक्स। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन इंपॉर्टेंट रहता है एक तो, और इधर से वेरिएंस इंपॉर्टेंट रहता है। वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आर सिमिलर काइंड ऑफ। मीन डेविएशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। सेंट्रल टेंडेंसी से डायरेक्टली अगर हम बात करें कि ओनली मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आ जाए तो वो नहीं आते हैं। क्वेश्चन मोस्टली वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन से। व्हाट इज द मीनिंग, अगर आपको इनका मीनिंग पता चल जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जरा, तो फास्ट फास्ट अपन रीड कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसको ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अपन को तीन चीजें पढ़नी, मीन, मीडियन और मोड। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप, उसी के रिगार्डिंग अपन करेंगे। पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जिस काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर उसी टाइप का थ्योरेटिकल कॉन्टेंट अपन लेंगे। ग्रुप डेटा, तो यहाँ पर हमारे पास में दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक बने हैं जो, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा, और एक होता है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा से डायरेक्टली क्वेश्चन है। ग्रुप डेटा में इसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डेटा का तो एक्चुअली तो कंप्लीट मीनिंग तो ये हो गया, जैसे अपन इंटरवल लेते हैं कि 0 to 10 है, 10 to 20 है, उसका क्लास इंटरवल आता है, उस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली कम आते हैं। कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो सबसे पहले मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, दिस काइंड ऑफ डेटा अगर आपके पास में डायरेक्टली डेटाज गिवन है, x1 x2 x3 लाइक 1 2 3 4 5 है, या कुछ और भी डेटाज आपको दे रखे हैं, तो उस केस में अपन डायरेक्टली मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन, ये जो अपन मीन निकाल रहे हैं ना डायरेक्टली मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन। मीन एक्चुअली फिर भी तीन टाइप के होते हैं। मीन में हमारे पास में एक अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। मीन में हमारे पास में थ्री टाइप के मीन हो गए, एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है और एक हार्मोनिक मीन होता है। ये ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक, यहाँ पर सिंपली अगर मैं मीन की बात करूं, अगर ओनली मीन वर्ड लिखा हो ना, ओनली मीन वर्ड का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन होगी, दैट इज रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हो गया कि जैसे डेफिनेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
क्या बोला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि मीन, और जनरली मीन को अपन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मैं लिख देता हूँ। तो मीन इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार, x bar equal to, this is the x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn divided by number of observation n. Simply we need to write down like this. So sigma, this symbol is represent the sigma. Sigma means summation. This symbol is represent summation. That means sum of numbers upon n, number of observation. और यहाँ पर लिख सकते हो आप I equal to 1 to n. That means x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn. तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट होता है मीन का। अगर अपन ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर अपन उस फॉर्मूले में जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देना क्योंकि ये सब सारे फॉर्मूले में आगे काम आएगा। जैसे ऑब्जर्वेशन लेयर का x1 और फ्रीक्वेंसी f1, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली। तो जैसे x1 है, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो x1 है, ये x1 is comes f1 times, x1, x1, x1 and so on, this is comes occur in f1 times। जैसे मान लीजिए कोई डेटा है 10 और फ्रीक्वेंसी है 4, मान लीजिए x की वैल्यू 10 है और f की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये होता है कि जो 10 है, 10 is comes 4 टाइम, 10 is comes 4 times। दैट मीन्स आपको 10 को 4 टाइम अलग अलग लिखना पड़ेगा, 10 10 10 10, 4 बार आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा 10 को। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, तो x1 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 f1 टाइम। सिमिलरली जो x2 है उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो x2 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 ये आपको f2 टाइम्स लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन लाइक दिस में। तो अब जब अपन इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, x बार इक्वल टू मीन, मीन कैसे निकालोगे, x1 है x1 है x1 है x1 है, ये x1 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 आपको f1 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, प्लस जो x2 है x2 है x2 है x2 है, ये आपको f2 टाइम्स लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन, x3 है तो x3 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे xn है, xn को भी आपको fn टाइम्स लिखना पड़ेगा, fn टाइम्स, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे फिर, f1 टाइम्स तो x1 है, f2 टाइम्स x2 है, तो f1 टाइम्स x1 हो गया, f2 टाइम्स x2 हो गया, f3 टाइम्स x3 हो गया एंड सो ऑन f प्लस प्लस fn, राइट। अब देखिए जैसे ये था, मैंने कहा था 10 10 10 इज कम्स 4 टाइम्स, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 4 टाइम्स करोगे 40 आ गया। ये 40 कुछ नहीं है, दैट इज 10 into 4। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज f1 टाइम्स x1, f1 into x1 हो गया ये। सिमिलरली सेकंड वाला f2 टाइम्स x2, तो f2 into x2 हो गया ये। थर्ड नंबर पर जो x3 आएगा वो f3 टाइम्स x3 है, तो f3 into x3 हो गया एंड सो ऑन, प्लस प्लस fn into xn हो गया, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये है ही f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन प्लस प्लस fn, और दिस शुड बी रिटन एज सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। I hope you understood what is the concept of this frequency। f1 times है ये, f2 times है, f3 times है, like this। This is the mean only from the frequency distributions। ज्योमेट्रिक मीन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन को gm nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, व्हाट इज मीनिंग, x1 x2 x3 xn n ऑब्जर्वेशन है, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा g इक्वल टू अपन ये लिखते हैं x1 into x2 into x3 एंड सो ऑन xn, इट्स ऑल पावर 1/n। ये अपन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में फिर से देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑब्जर्वेशन का, उसी का फॉर्मूला ये। सिमिलरली
अगर फ्रीक्वेंसी में दे रखा, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अपन लिखना पड़ेगा। यहाँ ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखोगे, जी इक्वल टू x1 f1 टाइम्स है, इसका मतलब x1 इंटू x1 इंटू x1 इंटू, यहाँ पर x1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f1 टाइम्स तक, f1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली आपको x2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x2 इंटू x2 इंटू x2 एंड सो ऑन अप टू f2 टाइम्स, इसको आपको f2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सो ऑन। जैसे xn है तो xn इंटू xn इंटू xn xn, इसको fn टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी होल पावर में जैसे मैंने लिखा था 1/n, 1/n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही है, x1 जो है f1 टाइम्स है, f1 टाइम्स x1 हो गया, प्लस f2 टाइम्स x2 हो गया, f3 टाइम्स x3 हो गया, एंड 7 प्लस प्लस fn टाइम्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x1 इंटू x1 इंटू x1 f1 टाइम्स है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ x1 की पावर f1, x1 इंटू x1 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 f1 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये पावर में चला जाए, जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे 4 टाइम्स तो 10 पावर 4 हो जाएगा, लाइक दिस। सिमिलरली ये जो टर्म है ये x2 की पावर में f2 आ जाएगा, सिमिलरली x3 पावर f3 हो जाएगा, एंड सो ऑन लाइक दिस वे xn पावर fn आ जाएगा, और इट्स ऑल पावर विल बिकम 1 अपॉन, ये जो टर्म है कंप्लीटली सिग्मा fi, दिस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल N। जो सिग्मा n है दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज रिटन एज कैपिटल N। नोट इट। तो ये जो कैपिटल N जो होता है इसको बोलते हैं सिग्मा fi, f1 प्लस f2 प्लस f3 जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कुछ नहीं होता, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं, दिस इज द अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको सिंपली फॉर्मूला ध्यान रखना, बाद बाकी ये सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अपन देखेंगे जब एचपी पढ़ते हैं तो उस केस में, मतलब आपको इसका जो फॉर्मूला अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, हार्मोनिक मीन h इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन 1/x। ये जितने भी डेटा है या ऑब्जर्वेशन है उनका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर उनका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो उनका ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल 1/x1 1/x2 1/x3, इस n को आप लोग डिवाइड करोगे तो ये अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, और फिर उसका अगेन रेसिप्रोकल है। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है। सिमिलरली हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा का निकालोगे तो कैपिटल H इक्वल टू अपन ये बता देंगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्वियसली f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड n इज रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन fn, और डिवाइडेड बाई, अब जो x1 है x1 आपको f1 टाइम लिखोगे तो 1/x1 को f1 टाइम लिखना पड़ेगा, 1/x1 प्लस 1/x1 प्लस 1/x1 प्लस 1/x1, ये f1 टाइम्स हो जाएगा, तो फाइनली ये f1 अपॉन x1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाला f2 अपॉन x2 हो जाएगा। सिमिलरली x3 है तो f3 टाइम्स लिखोगे तो 1/x3 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 f3 टाइम्स लिखोगे तो f3 अपॉन x3 हो जाएगा, एंड सो ऑन प्लस 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 fn अपॉन xn। तो इसको सिंपली अपन लिख देते हैं सिग्मा ऑफ द fi डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ fi अपॉन xi। ये हार्मोनिक मीन है। ये जो मीडियन है, मीडियन भी लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मीडियन मीन के बाद मीडियन, मीडियन का मतलब होता है आप सब जो भी आपके पास में ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट टू लेके लास्ट ऑब्जर्वेशन, टोटल n ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रखा है, पहले x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन अप टू xn। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीज है, लाइक दिस, these are in ascending order।
तो सबसे पहले तो आपको n ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यू कैन अरेंज इन असेंडिंग एज वेल एज इन डिसेंडिंग, नो प्रॉब्लम। मोस्टली अपन असेंडिंग ही लिखते हैं, ऑलवेज अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करना होता है, आगे बढ़े, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ऑलवेज थिंक बिग। तो नेक्स्ट टर्म जो आगे वाली टर्म होती है वो बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए जनरली अपन असेंडिंग लेके चलते हैं। अब यहाँ पर मीडियन क्या होगा, अगर मान लीजिए एन ऑड नंबर है, अब उसको सिंपली आप ये देख सकते हो, जैसे मेरे पास में दो केस ले रहा हूँ, मेरे पास में एक तो 10 ऑब्जर्वेशन है, एक तो n इक्वल टू 10 है। 10 मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 4 5, चलो मैं 6 ही ले लेता हूँ, सिंपल हो जाएगा। और एक मैं ये ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 ओनली। अब इनमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, तो अगर मेरे पास में n ओड है, इफ वी हैव n इज ओड, देन वी हैव ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म। अगर 5 टर्म है तो ओनली वन मिडिल टर्म होगी, दैट इज द टू दिस साइड और टू दिस साइड। और ये मिडिल टर्म जो होता है यहाँ पर, जो इफ n इज ओड, देन जो मीडियन होता है, तो मीडियन हम ये बताते हैं n प्लस वन बाई टूथ टर्म, n प्लस वन बाई टूथ टर्म। दैट मीन्स अगर n 5 है तो ये 5 प्लस वन 6 बाई 2, यानी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म जो है अपने पास मीडियन हो जाएगा। मीडियन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। लेकिन अगर n इवन नंबर है, इफ n इज इवन, तो जैसे ये 6 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर मेरे पास में दो मिडिल टर्म आ रहे हैं, 3 भी है और 4 भी है, 3 भी है और 4 भी, बोथ आर द मिडिल टर्म। तो यहाँ पर जब अपन मीडियन की बात करते हैं तो हम ये बताएंगे जैसे n बाई टूथ टर्म और प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म और डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स दिस इज नथिंग, दैट इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म है, दिस इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। तो 3 प्लस 4 बाई 2 हो जाएगा इस केस में ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी के अंदर सब कुछ दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी जब भी आपको, जब मीडियन के केस में अपन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो आप लोगों को एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसमें। In this case, you need to find out the cumulative frequency. तो cumulative frequency क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल। तो ये 3 टेबल्स अपन बनाते हैं यहाँ से। एक होता है ऑब्जर्वेशन xi, रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग fi होती है, और यहाँ पर होता है cf। cf मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। xi मीन्स ऑब्जर्वेशन हो गया x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और fi में f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सम करना। तो ये पहला टर्म तो f1 f1 ही रहेगा, आगे आपको ऐड करना है, f1 प्लस f2 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव मतलब सक्सेसिव टर्म जो होता है उसको ऐड करते जाए, यहाँ f1 f2 f3 एंड सो ऑन, लास्ट में ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन, लास्ट में fn। ये जो टर्म है लास्ट में, दिस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल N, यानी कि कैपिटल N इक्वल टू हो गया f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन अप टू fn। कैपिटल N हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला तो वही है असेंडिंग ऑर्डर में x1 x2 x3, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही आपको। अब n बाई टू रिप्रेजेंट करेगा मिडिल टर्म को ऑलवेज। तो यहाँ पर जो हमारे पास में रहेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट n बाई टू, फ्रॉम दिस यू नीड टू फाइंड आउट दी n बाई टू। तो where capital N equal to this, see the cumulative frequency just greater than n by 2, corresponding value of x is the median। यहाँ से n by 2 से just greater than cumulative frequency जहाँ आ रही है उसके corresponding जो भी मीडियन आ रहा है, जैसे मान लीजिए n by 2 यहाँ पर कहीं आ गया, तो इससे जस्ट ग्रेटर देन, इसके रिगार्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो आपके पास मीडियन रहेगा। क्वेश्चन से अपन देखेंगे आगे।
नेक्स्ट आता है मोड। मोड का मतलब सिंपल मीनिंग में होता है कि मोस्ट अक्कर्ड वैल्यू। मोस्ट अक्कर्ड डेटा, सिंपल वर्ड में अपन ये लिखते हैं, या फिर मैक्सिमम टाइम्स अक्कर्ड डेटा। मैक्सिमम टाइम्स अक्कर्ड डेटा। तो जो डेटा मैक्सिमम टाइम्स आ रखा है वो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ऑब्जर्वेशन की जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, दैट इज द मोड ओनली। और वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मोस्ट मैक्सिमम टाइम्स कोई डेटा अगर अकर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज मोड। गॉट इट। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड का रिलेशन आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर होता है उसके अंदर अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सेक्शन रेशियो। सेक्शन फॉर्मूला जब अपन पढ़ते हैं, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन, 2 पॉइंट जो होते हैं वो एक थर्ड पॉइंट जो होता है इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन एम रेशियो एन में। वही सेम टू सेम केस यहाँ पर अपन बनाते हैं इसके। तो ये जो मीन है, तो जहां पर हम ये बताते हैं कि तो फर्स्ट पॉइंट आता है वो मीन आता है, सेकंड पॉइंट जो है मीडियन है, और थर्ड पॉइंट जो है वो है मोड। थर्ड पॉइंट इज मोड। तो ये जो मीडियन है, मीडियन इज ऑलवेज डिवाइड मीन एंड मोड इन 1:2, 1:2 इंटरनली। अब यहाँ से जो भी आपको निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको शायद तक दिया भी था, जो सिनॉप्सिस आपने पढ़े होंगे मुझे लगता है, नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। सिनॉप्सिस हमेशा पढ़े, प्री रीडिंग नोट्स होते हैं वो प्री रीडिंग नोट्स हमेशा पढ़े। उसमें क्वेश्चन था, उस टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। और मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे, देखना जरा। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज, लेट अस कंसिडर 60 ले लेता हूं मैं, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर मैं ले रहा हूं मीन एंड मीडियन, और सेकंड जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड, राइट। तो अब इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, आपको इस रिलेशन से ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस रिलेशन से अपन कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहां पर ये तीनों टर्म्स को आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो पहला मेरे पास में मीन है, सेकंड मीडियन है, और थर्ड वन इज मोड, एंड इट इज ऑलवेज डिवाइड इन 1:2। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 60। ये मेरे पास मीन है और ये मोड है, इन दोनों के बीच का जो टोटल डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है मेरे को 60। मतलब डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस। अब ये कह सकते हैं इन मीन और मोड के बीच की जो लेंथ है वो 60, ये जो इंटरवल है 60 का है। जैसे अगर मान लीजिए मीन अगर 10 है तो मोड जो है वो 70 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 60 का हो गया। तो मीन और मोड के बीच का डिफरेंस। अब ये जो 60 डिफरेंस है इसको आपको डिवाइड करना होगा 1:2 में, 1:2। तो टोटल तो 3 मतलब 3 पार्ट हो गया ये। तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 20 और 40 का आ जाएगा रेशियो। तो 1:2 में डिवाइड कर लो,
तो ये 20 इधर हो गया और 40 ये इधर हो गया, तो ये 1:2 में डिवाइड है। जो भी क्वेश्चन है आप निकाल सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन कितना हो जाएगा, दैट इज द 20 ओनली। और डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड कितना हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्टली यू कैन राइट ऑन 40 बिना कोई without any kind of calculus. Got it? So this kind of question can be found anywhere. Empirical formula, if you want to write down, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस 1 टाइम ऑफ मोड। वो फॉर्मूला निकल के आता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जो आता है वो, जैसे m इंटू x1 प्लस n इंटू x2, वही सेम टू सेम, सॉरी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, 1 इंटू मोड प्लस 2 इंटू मीन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई। गॉट इट? तो ये रिलेशनशिप आता है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ये देख लेना आप। फिर अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1 को। मीन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन है, ऑल आर द डिफरेंट है, इस 40 गिवन है, तो मीन गिवन है 40। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट्स जो मेरे पास में ऑब्जर्वेशन है वो x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन 21। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 21 है ना। अब फर्स्ट केस में क्वेश्चन में जो गिवन है, जब आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, इन सब का मीन 40 दे रखा है। मीन का मतलब ये हो गया, जब आप निकालोगे x बार इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू x21 डिवाइडेड बाय दिस इज द 21 और दिस इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि सिग्मा xi जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 40। यस और नो? नंबर ऑफ, तो सिग्मा xi इक्वल टू हो गया 21 इंटू 40। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन इज से if each observation greater than the median are increased by 21। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो आपको इसमें ये निकालना पड़ेगा व्हाट इज द मीडियन, विच टर्म इज मीडियन। सबसे पहले अगर अपन बात करें मीडियन की, तो मीडियन है तो मैं डायरेक्ट कैपिटल एन लिख रहा हूं, तो कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एम इज मीडियन। मीडियन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें जरा, 21 है, 21 ओड नंबर है, ओड नंबर है तो n प्लस 1/2 टर्म आ जाएगा। मैं ये कहूंगा 21, दिस इज द 21 प्लस 1/2 टर्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि 21 11th टर्म हो गया ये। तो जो 11th डेटा है वो मेरा मीडियन रहेगा। तो अब ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू 21 है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन रहा होगा जिसका नाम है x11, इससे पहले एक ऑब्जर्वेशन रहा होगा x10, इसके बाद में भी एक ऑब्जर्वेशन रहा होगा x12। तो ये x11 जो है, दिस इज द वर्क एज ए मीडियन। तो 11th टर्म जो हो गया वो x11, x1 x2 x3 एंड सो ऑन x21 है, तो x11 जो हो गया वो मीडियन हो गया। राइट? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज से ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज्ड बाय 21। तो ये x11 से आगे के जितने भी एलिमेंट है उनको 21 से इंक्रीज करवा दीजिए। दीज आर द 10 ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, दीज 10 आर डिफरेंट, और मिडल इज द मीडियन। अब न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या लिखोगे? नाउ वी नीड टू राइट डाउन हियर न्यू ऑब्जर्वेशंस। न्यू ऑब्जर्वेशंस विल बिकम, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, ये x10 और x11 अप टू दिस तो सिमिलर सेम रहने हैं, ये देयर आर नॉट चेंज अप टू x11, बट ग्रेटर देन x11 जो है वो दैट आर दी चेंज्ड।
by 21. Next will become x12 plus 21. Next observation will become x13 plus 21. And so on like this way, x21 plus 21. Right. Now when you find out new mean, the question is asked what is the new mean. अभी अपन once again new find mean find out कर लेते हैं. x बार लिख देता हूँ. स्मॉल x बार ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कैपिटल x बार. वैसे ऑब्जेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अब जब न्यू मीन लिखोगे तो x1 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू x10 प्लस x11. यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे. लेकिन जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो x12 प्लस 21 होगा, प्लस x13 प्लस 21 होगा, एंड सो ऑन. ये x21 प्लस 21 होगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही सेम टू सेम 21 ही है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नॉट चेंज. व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, देखना जरा, x, x2, x3, x10, x11, x12, x13, x21, ये तो सेम है ना, एज इट इज है. तो इसको तो मैं डायरेक्ट सिग्मा x i लिख देता हूँ, और प्लस ये 21, 21, 21, 21. ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर x12 थे, ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है. These are total 10 observations. और इधर भी 10 थे. These are also 10 observations. These are also 10 observations. ये जो 21, 21, 21 है, ये 10 टाइम्स हो जाएगा. तो इंटू 21 इंटू 10 और कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाई 20. ध्यान से देख लेना इसमें. x1, x2, x11, x12, x13, x21, ये तो सारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और प्लस 21, 21, 21, ये जो है ये 10 टाइम्स है. तो 21 इंटू 10 हो गया, डिवाइडेड बाई ऑल्सो 21. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई. सिग्मा एक्स आई तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना. दिस इज द 21 इंटू 40. तो सिग्मा एक्स आई अपन अगेन यूज में ले रहा हूँ, 21 इंटू 40 प्लस 21 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई. यहाँ पर आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. मैं कंप्लीट इसको 21 इंटू 40 मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. आप डायरेक्ट 21 इंटू 40 रखो इसमें, और यहाँ पर आप जब 21 कॉमन लोगे तो ये 40 टाइम्स प्लस 10 टाइम्स, तो 40 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये 50 टाइम्स हो गया ये, और डिवाइडेड बाई 21. आप देखें कोई 21, 21 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट, आंसर विल बी 20. राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा. इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे. ये क्वेश्चन देखना जरा, मीन निकालना है आपको इसका. तो सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी टाइप का क्वेश्चन है. फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया कि आपके पास में टोटल एंड ऑब्जर्वेशन है. जब आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स आई, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ आई. एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मीन्स ऑब्जर्वेशन. तो जो मेरे पास डेटा है वो तो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और करेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, अब जो 0 है वो NC 0 टाइम्स है, 1 जो है NC 1 टाइम्स है, NC 2 टाइम्स है, दिस इज NC 3 टाइम्स है, and so on. This data is NC n times. Got it? Now, when you find out its mean, so mean का direct formula x bar equal to, you know, this is the sigma of, you can write down xi into fi divided by sigma of fi. Got it? तो sigma xi, that means 0 into NC 0 plus 1 into NC 1 plus 2 into NC 2 plus n into NC n. n into NC n और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 एंड सो ऑन प्लस NC n. अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा PNC बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का क्वेश्चन हो गया. तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अपन इसको लिखते हैं, दैट इज सिग्मा ऑफ R इंटू NCR, और डिवाइडेड बाई दिस इज नथिंग दैट इज सिग्मा NCR. अगर आपको फॉर्मूलाज पता है दैट इज वेल एंड गुड. R इक्वल टू 0 to 1 है,
सॉरी n है, और यहाँ पर भी r इक्वल टू 0 टू, ये जो डिनोमिनेटर है ये होता है 2 टू द पावर n, जो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। मुझे एक बार बता दीजिए, ये आपको पता है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? nc0 प्लस nc1 nc2 प्लस ncn, इसकी वैल्यू क्या होती है? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। ओके, सब ओके कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा ncn दिस इज इक्वल टू 2 n ओनली। और ये जो r इंटू ncr है, इसका भी पता होगा फिर, r इंटू ncr। Yes, sir. गुड। r इंटू ncr ये जो होता है 0 इंटू nc0 प्लस 1 इंटू nc1 प्लस 2 इंटू nc2 एंड सो ऑन n इंटू ncn। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू 2 पावर n माइनस 1, n इंटू 2 पावर n माइनस, ये हो जाएगा n इंटू 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। When you simplify this, so this can be written as 2 power n upon 2 or divided by 2 power n. 2 power n cancel out, or remaining is n by 2. Your answer will become n by 2. Right? तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पर यूज में लिए। ये बाइनोमियल में आपको जब पढ़ाएंगे तो इस टाइम आपको बता देंगे। फिर एक और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में ले रहा हूँ, सॉल्व करना। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, मीन आपको फाइंड आउट करना है। मीन, अच्छा मीन गिवन है, यू नीड टू फाइंड आउट एन वैल्यू, राइट। वैसे आंसर मैंने दे रखा है 6, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ये चाहिए एडवांस का। आंसर तो वन काइंड है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपके पास में ये डेटा थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज भी हो सकता है। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन विच ओनली मीन इज आस्क्ड। तो इसको सॉल्व करना ट्राई करना। बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, और बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स पावर एन का। 1 प्लस एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन ncn इंटू एक्स पावर। तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें यूज में आने वाला है, राइट। इस फॉर्मूले को जब आप लगा के थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर सोचना, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ये भी सिंपल क्वेश्चन देखना जरा। मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, तो आप एक्स और वाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया सिंपली। तो जब मैं ऑब्जर्वेशन देखूंगा तो ये 10 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, 29 हो गया, 34 है, एक्स है, 42 है, 67 है, 70 है, वाई है, 42 है एंड 35। जब आप मीन कैलकुलेट, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्या ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, क्योंकि मीडियन में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग एडर चाहिएगा। 10, 21, 26, तो दीज आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आप मीन का फॉर्मूला लगाओगे तो मीन इक्वल टू, तो ऑल ऑब्जर्वेशन का आपको ऐड करना पड़ेगा। 10 प्लस 22, 26, 29, 34, एक्स, 42, 67, 70, वाई, 42, 35 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताएं जरा कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक 12 ऑब्जर्वेशन होंगे इसमें। क्वेश्चन इस है, तो इसको सोल्व करते हैं जरा थोड़ा सा। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, देखना जरा। 10 है, 20 है, तो 1 2 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 प्लस 4 10 20 30 30 20 50 70 100 140 200 270 310
270 plus 4, 310, 310 plus 3, 340 plus 2, 2, 6, 8, 8, 9, 17, 17 for 21, 23, 30 plus 37 plus x plus y divided by 12. तो मीन क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि जो मीन है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 340, तो 337, सॉरी 347, 377, 377 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू, हम ये कह देंगे 42 आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करके एक्स प्लस वाई की कुछ वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट कर लेना। वो कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम, आगे कैलकुलेशन आप लोग करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ से मीडियन की, लेकिन ये कैलकुलेशन करनी है आपको, अगर डाउट आए तो आपको पूछना है मुझसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ से मीडियन की। तो टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो अगर टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मीडियन होगी, मीडियन क्या होगा, तो मीडियन मैं कहूँगा टोटल 12 ऑब्जर्वेशन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो n इक्वल टू 12 है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 12, 12 मीन्स इवन। So whenever observations are even, तो median we need to write down n by 2 term plus n by 2 plus 1th term, और divided by 2। n 12 by 2 मतलब 6th term हो गया, 6th term plus 7th term, 6th plus 7th term by 2, ये 13 by 2 मत कर देना, आपको ऑब्जर्वेशन में आपको 6th और 7th टर्म आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया, ये आ जाएगा x प्लस 42 by 2। तो ये आ जाएगा x प्लस 42 by, ऑडिट क्वेश्चन इसे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या आपसे? सॉरी सॉरी, मिस्टेक कर देना आपने, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देगा। If the mean and median of the following 10 numbers, only 10 numbers ही है हमारे पास में, हमने 12 कहाँ से ले लिए, 10 numbers, अच्छा ये 42 and 35 तो आर मीन एंड मीडियन है, ओके 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 ओके, 42 इज मीन एंड मीडियन इज 35, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 42 35 उठाइए यहाँ से सबसे पहले, n इक्वल टू 10 ही है यहाँ पर, ये 42 और 35 नहीं आएगा ना, मिस्टेक हो जाता कुछ प्लस वाई, तो ये कैलकुलेशन यहाँ से भी चेंज हो जाएगी, फिर काफी मिस्टेक हो गया ना। तो ये सम कितना आ रहा होगा, 10, 10, 20, 30, 50, 50, 70, 70, 100, 100, 140, 300, 370, तो एक हो गया 300, 370, 370 आ रहा था, 10, 20, 30, 30, 50, 50, 70, 70 plus 300, 100 plus 270, sorry 270, 270 plus 2 plus 6, 8, 8 plus 9, 17, 17 for 21, 21, 21 plus 2, 23, 30 और प्लस x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई ओनली 10 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 300 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 42। तो मीन इज द 42, तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, तो ये तो सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगी फिर आगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू वी कैन से 420 माइनस 300 आ जाएगा, 420 माइनस 300 दैट इज 120 आ रहा होगा, देख लेना इसमें। नाउ मीडियन में चलते हैं, तो मीडियन में भी अपने पास में चेंज होगा, तो टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 ही हो गए अब, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10 है, तो हमारे पास में आएगा 10 by 2 प्लस 10 by 2 प्लस 1, दैट मीन्स 5th टर्म प्लस 6th टर्म by 2, और जो 5th टर्म है वो 34 है और 6th टर्म जो है x और y है, x है सॉरी, 34 प्लस x by 2, दिस इज द मीडियन। बट क्वेश्चन इज से दिस मीडियन इज इक्वल टू, गिवन है क्वेश्चन में कि 35 है,
यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, 70 माइनस ये करोगे तो 36 आ रहा होगा x की वैल्यू। x की वैल्यू 36 आ जाएगी, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप फाइंड आउट करोगे तो y की वैल्यू 84 आ जाएगी, सॉल्व करोगे। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, इफ द वैल्यूज ऑफ ए बी सी जे पी अकर्स विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। डेटा ऑब्जर्वेशंस गिवन है x और इसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू 10, टोटल 11 टर्म्स है ना। ये जे है, यहाँ पर ये P नहीं है, ये शायद मिस प्रिंटिंग है, दिस इज K। तो J है और K है, गॉट इट? तो these are total 11 observations. Corresponding frequency दे रखी है, A is occur 10C 0 times, B is occur 10C 1 times, C is occur 10C 2 times, D is occur 10C 3 times, and so on. This is occur 10C 9 times और this is occur 10C 10 times. Got it? अब question is asked here कि what is the mode here? So you know mode is the maximum frequency, which has maximum frequency, out of which दिस टर्म इज मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको फिर से वही है, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट में आपको जाना पड़ेगा। तो आपको अगर पता हो तो इन एनसीआर, कोई भी अगर आपके पास में एनसीआर होता है, जैसे NC0 NC1 NC2, तो दो मिडल टर्म आते हैं यहाँ पर, जो हम ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम जो एनसीआर होता है ना, उसकी वैल्यू 2 होती है। दिस इज इक्वल टू NCN/2 होती है इफ n इज इवन, n क्या हो, इवन हो तब। और ये मैक्सिमम होता है N+1/2 भी कह सकते हो, N-1/2 भी कह सकते हो, बोथ आर मैक्सिमम। लाइक 9C4 और 9C5, ठीक है। तो इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो NCN-1/2, और अगर n इवन होता है तो NCN+1/2, दैट इज गिव एज मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास में 10C 10 तक है, तो n इक्वल टू 10 हो गया। इफ n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, तो हम ये कह सकते हैं 10C 10/2, दैट मीन्स 10C5, यहाँ पर 10 ले लीजिए। तो 10C5 इज मैक्सिमम। ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है अगेन। तो 10C5 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो A B C D, अब यहाँ पर ये 10C3 है, नेक्स्ट 10C4 आएगा, नेक्स्ट 10C5 आएगा, यहाँ पर कहीं 10C5। अब करेस्पॉन्डिंग आपको डेटा देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा इसके। जैसे A है तो A के साथ 10C0 है, B 10C1 टाइम है, C 10C2 टाइम्स है, D 10C3 टाइम्स, आगे E आएगा, नेक्स्ट F आएगा, E 10C4 टाइम्स आएगा, ये 10C5 है यहाँ पे, और F जो है वो 10C5 टाइम्स आएगा। तो 10C5 इज मैक्सिमम, F इज अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, तो F इज इट्स मॉडल। गॉट इट? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चैप्टर कैसे मिक्स होते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया है यहाँ पर। गॉट इट? इस तरह से आपके चैप्टर मिक्स होते हैं। जैसे बाइनोमियल के और स्टैटिस्टिक्स के दोनों के चैप्टर आपको मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन बन गए। फिर नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। इसके क्वेश्चन अपन कल देख लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा विद इन 5 मिनट आपको मैं इसको ब्रीफली समझा देता हूँ क्या होता है डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन में आपको सिर्फ 3 ही चीजें देखनी है, एक मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो और रेंज। अब रेंज तो कुछ नहीं होता, रेंज का तो सिंपल मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। अगर कोई डेटा मान लीजिए 10 to 100 है, तो हम ये कहते हैं जो रेंज है इसकी वो 90 की रेंज है इसकी। मिनिमम वैल्यू 10 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम मींस मैक्सिमम और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ आ जाती है मीन डेविएशन। अब देखिए मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन इज नथिंग, दैट इज द मीन डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द
एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द टर्म्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन का, देखना जरा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में x1 x2 xn ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, और आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द एवरेज। तो मीन डेविएशन का मतलब ये हो गया, पहले तो आपको निकालो डेविएशन, व्हाट आर द डेविएशन। जैसे मान लीजिए कि xi, तो एक टेबल फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ, ये xi है, इसके ऑब्जर्वेशन हो गए x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। यहां पर आपको क्या करना है, डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो डेविएशन होता है ना, ये डेविएशन अबाउट मीन भी हो सकता है, डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, डेविएशन अबाउट मोड भी हो सकता है, और डेविएशन अबाउट एनी नंबर भी हो सकता है। डेविएशन का मतलब ये होता है कितना डिफरेंस है उसके अंदर, उस डेटा में कितना डिफरेंस है। तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो मीन और मीडियन तक ही पूछे जाते हैं, दैट मींस मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो जनरली हम ए वैल्यू अपने यूज में ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक एब्सोल्यूट डेविएशन वर्ड लिखा है। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है पॉजिटिव ओनली, दैट मींस मॉडुलस। वी नीड टू फाइंड आउट xi माइनस a, और इसका मॉडुलस मींस पॉजिटिव नंबर, ओनली आपको पॉजिटिव ही लेना है। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ x1 माइनस a हो जाएगा, ये मॉड ऑफ x2 माइनस a हो जाएगा, मॉड ऑफ x3 माइनस a हो जाएगा, एंड सो ऑन दिस विल बिकम मॉड ऑफ xi। अब ये जो नए ऑब्जर्वेशंस आपको मिले हैं, इन नए ऑब्जर्वेशंस का जो मीन होगा वही आपका मीन डेविएशन कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, तो न्यू ऑब्जर्वेशन ये आ जाएगा। तो यहां से जब आप मीन फाइंड आउट करोगे x बार इक्वल टू, अपन ये लिखते हैं जनरली फॉर्मूला ये होगा, मोड ऑफ x1 माइनस a प्लस मोड ऑफ x2 माइनस a प्लस मोड ऑफ x3 माइनस a एंड सो ऑन प्लस 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 मोड ऑफ xn माइनस a, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही n है। मीनिंग ये हो गया मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। तो सिंपल वर्ड में आपने फॉर्मूला ये देखा होगा कहीं पर भी, दिस कैन बी रिटन एज मोड ऑफ xi माइनस a डिवाइडेड बाई n, मोड ऑफ xi माइनस a डिवाइडेड बाई n, i इक्वल टू आ जाएगा 1 to n। ये आपके पास मीन डेविएशन का सिंपल एक फॉर्मूला रहता है। तो ये जो है ना मीन डेविएशन अबाउट a है, इसको अपन जनरली इस तरह से रीड करेंगे, दिस इज द मीन डेविएशन, सॉरी x बार लिख दिया क्या मैंने, x बार नहीं है ये, x बार का मतलब तो मीन हो गया। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम डी ऑफ ए, दैट मीन्स मीन डेविएशन अबाउट ए, मीन डेविएशन अबाउट ए। तो मीन डेविएशन अबाउट ए आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। तो इसको अपन बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट ए, एम डी से भी सिंपली डिनोट कर सकते हो आप लोग, दैट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट ए। अब कई बार मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ लेता है, तो यहाँ पर xi माइनस x बार हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन में अपन एम डी एक्स बार लिख देंगे, और ये जो ए है वो मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो सिग्मा मोड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई n आ जाएगा, i इक्वल टू 1 to n। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करोगे तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला xi माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो आप मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट कर लेंगे, गॉट इट, लाइक दिस। अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, सेम फॉर्मूला एज इट इज, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन होगा तो xi माइनस है ये f1 टाइम्स आएगा,
x2 माइनस ए f2 टाइम्स आएगा, x3 माइनस ए f3 टाइम्स आएगा, और फाइनली अपन जो फॉर्मूला बना के लिखते हैं तो मीन डेविएशन अबाउट ए, दिस विल बिकम वी नीड टू राइट डाउन f1 into mod of x1 minus a प्लस f2 टाइम्स ऑफ mod of x2 minus a, ये मॉडुलस है ना, प्लस 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 fn into mod of x n minus a, मोड का मतलब सिंपल हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा एफ आई है ही, एन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास में f1 प्लस f2 प्लस 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 fn आ जाएगा, राइट। तो सिंपली वर्ड में अपन ये लिखते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ, दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो यहाँ एक्स बार लग जाएगा, तो बाकी अपन देखते हैं। फिर एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेरियंस के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा ओनली सिंपल वन लाइन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वेरियंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरियंस क्या होता है? वेरियंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर वेरियंस को बोलते हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन। तो हम ये लिखते हैं दिस इज द वेरियंस, दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखे, ये कोई वैसे टेक्निकल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्वेशंस अबाउट मीन, अबाउट मीन। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मीन ऑफ ओनली डेविएशन, मीन ऑफ ओनली एब्सोल्यूट डेविएशन वर्ड यूज लिया था। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ओनली, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला रहेगा, तो सिग्मा स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हम ये बताते हैं बेसिकली, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, तो मतलब ये हो गया कि x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन, प्लस 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 एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल लैंग्वेज पर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये बता देते हैं, दिस इज द समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट। आज थोड़ा सा क्या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा टाइम अपना कंज्यूम हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लेना चाहूंगा आपके। एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन होल स्क्वायर अपॉन में एन आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिग्मा स्क्वायर का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के ध्यान में रखना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट है, मतलब ये हो गया दिस इज अर्थमेटिक मीन स्क्वायर ऑफ ऑल, स्क्वायर रूट ऑफ, दैट मींस दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यहां से अपन डायरेक्टली ये देख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा, एंड दैट इज नथिंग, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है एक्स बार ही लेना है अबाउट द मीन, टिल दैट नॉट मेंशन एनीथिंग अदर, तो आपको एक्स बार ही लेके चलना है। अगर मेंशन हो तब आप कोई अदर डेटा ले सकते हो।
सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही सेम टू सेम फॉर्मूला हो गया कि भाई ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वो f1 टाइम्स आ रहे हैं, दैट्स इट ओनली। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो f1 टाइम्स आ जाएंगे, f2 टाइम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन आर अकर एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार, x1 माइनस एक्स बार अकर f1 टाइम्स, x2 माइनस एक्स बार अकर f2 टाइम्स एंड सो ऑन। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसको ये भी फॉर्मूला में बना सकते हो, दिस इज द सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और माइनस का x बार का होल स्क्वायर, राइट। और इस केस में जब आप वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हम ये कह देंगे दिस इज द ओनली सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऑन, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन से आता है बेसिकली फॉर्मूला, अभी के लिए आप डायरेक्टली याद रखें एक्स बार का होल स्क्वायर। n लिख रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, ये n भी होंगे यहाँ पर आपको सिग्मा एफ आई लिखना है, दिस इज आल्सो सेम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं वो सिग्मा एफ आई के इक्वल होते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही सिग्मा एफ, नॉट इट फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा एफ, नॉट इट। तो ये सारी चीजें, फिर एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार अपॉन इनटू 100, दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सिंपली कोई कई बार आस्क मेनी टाइम इन क्वेश्चन इज आस्क। नाउ इसके अंदर 6 टोटल 3-4 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट आते हैं आप लोगों को ये सॉल्व भी करने की कोशिश करना, जो भी बच्चे हुए क्वेश्चन है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें, yes or no? Yes, sir. Remaining we will discuss on next class, okay? If any kind of doubt you will ask, any kind of problem you will ask, any kind of problem, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछें, मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ऑडिट। और आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी जम के। थैंक यू सो मच।